Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. 24 हुआ, ठीक है. So let us start. And so unit number जो 5 है ना, that we will be learning है ना after unit number 6. So unit number 6 we will be learning today, and we are starting to understand what is meant by functions and how functions are playing a vital role in the programming for each and every language. Okay. Hello. Yes, sir. Sure. Let us start defining this function. So function is collection or group of statements. If somebody will ask you, what is the definition of function, so in for each and every language, function is nothing but, so already we have seen, so definition of program and function, it's same. And in case of program, if we are defining, so we are defining in this way, so collection or group of instructions or statements. Yes. Similarly, function is also an collection or group of statements. Difference between program and function is what? So program is entire program and function is sub program. Yes. फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सब प्रोग्राम. ये प्रोग्राम का स्मॉल पार्ट रहेगा, है ना, सब प्रोग्राम. हेलो. ओके. यस. Yes, sir. हाँ. So functions, if you wanted to classify, so we can classify functions into two main categories. First category जो है ना, library functions, library, and another category is user defined function, user defined functions. Okay. Hello. So library functions are standard functions whose meaning is already defined and by the uh, for the entire computer. So Dennis Ritchie and his team, and they already wrote and a few functions which are already present in the header files, stdio.h header file, conio.h header file. So different header files we have seen, dos.h, process.h, string.h, all these are header files. In all these header files, standard library functions are already defined and by the Dennis Ritchie and his team. So we are calling them as and such functions whose meaning is already defined, and such functions are called as library functions. Examples are what? CLR, SCR, get ch, CLR, SCR. Okay. Hello. Get ch. Already these functions we used. Yes. Yes, Printf, sir. printf, scanf, delay, POW, strlen, strlwr, strupr, strcmp. So string handling functions also we have seen. And so all these functions whose meaning is already defined and for the system or machine, such functions we are calling them as library functions whose meaning is already defined, predefined functions. These functions are also called as predefined function. So CLR SCR ka use. What is the use of CLR SCR? Which is helping us to clear the previous output screen. For each and every function, there is specific meaning or specific, it is performing a specific work or task. So CLR SCR, and what is the function of CLR SCR? To clear the previous output screen. What is the function of getch? To hold our output screen. What is the function of printf function? This function is helping us to display appropriate message on the output screen. Yes. So for each Yes, and Yes, sir. sir. every, for each and every defined predefined functions which we are using directly in our program, so such functions are called as library functions. उसको हम library functions कहेंगे, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है. डेनिस रिच एंड हिज टीम है ना, ऑलरेडी डिफाइंड सच फंक्शंस, एंड दिस फंक्शंस डायरेक्टली वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क्स. ओके. हेलो. Yes, sir.
And all these library functions are defined in header files, stdio.h, conio.h, dos.h, process.h. All these are header files. At the end of this session, at the end of an this unit number 6, we will understand how to write our own and user defined header file. हमारा खुद का भी user defined header file we can write, and that how to write that also we will learn at the end of this unit number 6 and functions. So first of all, let us try to understand what is meant by library function. So have you understood what is meant by library function? Hello? Predefined functions whose meaning is already defined and in the system. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Second category of functions is user defined functions. In case of user defined function, what is happening as a programmer? User means what? As a programmer or developer. If suppose you are a programmer or a developer, so you can write your own functions. And if you are writing your own functions, it means you are defining and such functions by your own as a programmer. Such functions are called as user defined functions. As a programmer, you are defining your functions. For example, suppose I wanted to perform addition of two integer numbers, so standard function is not available like sum, and so sum function is not available and in library functions. So sum function जो है वो library functions में available नहीं है. As a programmer, you will have to define your own functions which will perform addition of two integer numbers. And if you are writing, if you are defining, if you are declaring your own user defined function as a programmer or developer, so such functions are called as user defined functions. Yes? As a programmer है ना, you are defining and कुछ functions है जो हम खुद से define कर सकते, उसका specific task रहेगा that we are defining by our own. And another example, for example, suppose eo नाम का function है which is not available in library function, so such functions we can define and as a programmer we can define such functions, and this function we can assign and what kind of task this function should supposed to perform. So e stands for even, o stands for odd, and so this function I can use, I can define and which will be performing task to determine our entered input is even or odd. Yes? Hello? Prime नाम का function that is also not available, standard नहीं है ये function, ठीक है? Prime. तो ऐसा कुछ फंक्शन हम खुद का लिख सकते हैं. दिस फंक्शन विल हेल्प अस टू डिटरमाइन एंटर्ड नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. For specific task, for a specific purpose, as a programmer or developer, we are writing our own functions. And as a programmer, if we are writing our own functions, we are calling them as user defined functions. So have you understood difference between library function and user defined function? Hello? Definitions we have seen. Hello? 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 Yes, sir. डेफिनेशन समजली का? दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? लायब्ररी फंक्शन्स, these are predefined functions. In case of user defined function, as a programmer you can define your own functions. Now with the help of programming we will understand how to write our own user defined function, but before that let us try to understand library functions, how they are playing role. And so before moving to an actual writing program, let us try to understand why there is necessary why we are using functions in our program. अभी देखो है ना, मेन फंक्शन जो है नॉर्मली हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ना, void main ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग करली ब्रैकेट, यहाँ पे CLR SCR एक ही स्टेटमेंट लिया है. सो मेन फंक्शन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन. ये मेन फंक्शन जो भी कुछ काम कर रहा है, whatever statements we wanted to execute, those statements we can write in the opening and closing curly bracket. This is start of main function, this is the end of main function. In the opening and closing curly brackets we can write our code, whatever instructions we are writing, all instructions main function is executing one by one. So function of main function is what? To execute entire program
if you will not write this main function in your program, and if you will try to execute your program will not be executed because main function is missing. and अगर मेन फंक्शन मिस है तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा. यस, हेलो. सो फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन इज व्हाट, टू एग्जीक्यूट आवर कोड. अभी यहाँ पे जो फंक्शन हमने जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं हमें, all those instructions we can execute, and that execution of all the code and will be done with the help of main function. Therefore main function we are using. Yes, hello. Yes, sir. Now one scenario, let us try to understand one scenario, where we are considering, we are controlling one company, and you are working in that company as a CEO and CEO. So chief executive officer, let us call that post as chief executive officer, and you are chief executive officer of company. Name of that company is AN. So chief executive officer is very important person, okay, in the company, who is having all the rights to decide the policies, rules and regulations to run that company. Is it? पता है कि आपको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल के एक पोस्ट रहता है ना कंपनी में, हर एक कंपनी में रहेगा. And that person is having an authority, and that person will have an authority. It means that person can decide, design and some kind of policies to run, to govern that company. Yes, hello. Important व्यक्ति रहता है वो, काय म्हणणार बघा, important person who is having all rights to decide on policies for company. Okay, hello. Yes, sir. फेसबुक का कौन है पता है क्या सीईओ? फेसबुक जाऊ द्या ना. गूगल, सुंदर पिचाई, हु इज इंडियन. Yes, sir. You know, Yes, sir. Sundar Pichai is the CEO of Google company, and he is Indian person. Entire Google company, he is trying to make a certain kind of modifications, any kind of product if company is launching. So he is taking care of all the things. Mark Zuckerberg. Yes, hello. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg for Facebook. For Tesla, who is the owner? Who is the CEO? Who Tesla, and for Tesla company, Elon Musk. owner is Elon Musk. And Narayan Murthy is for Infosys. Yes. Yes. Reliance Industry, for Reliance Industries, you can consider owner of Reliance Industries is मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी. मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी बघा ना, मला जास्त नाही माहित आहे. फॉर विप्रो अजिम प्रेमजी. यस, hello. Wipro company, do you know? And see here, and such kind of awareness also you should have, because if you wanted to work in any national, multinational company, so see here, and when you will be joining any company at that time, and you will be joining as a fresher, and so you will be getting job in the company as a project engineer, product engineer, software engineer, and slowly what will happen, you will go to higher levels. So your aim should be this, and you should become a CEO, because CEO, and this is very important post. Salary also will be getting very high package you will be getting, and if you will be working in company as a CEO. and तो ये टारगेट रखो आपका, है ना, कंपनी में अगर गए तो, है ना, सीईओ बनने का. ठीक है, बिकॉज यू विल बी हैविंग एन authoritative skills are required actually to handle this post, because you will be working, you will be designing all the rules and regulations, different kinds of policies. छुट्टी देने का है, नहीं देने का है, everything you can decide. Okay, hello. Yes. Yes, sir. And what is the important thing, this person actually is not doing anything, and very important thing, and you try to understand. Those who are working as a chief executive officer for any company, actually they are not working, they are trying to get they are actually assigning work to other people, and other people they will be working only, they will be observing. Yes,
actual work will not be done by the chief executive officer. Only his role is what? His role is to supervise, and his role is to supervise how other people, other workers, other employees, how they are working in the company. Only he or she is, and only he or she is supervising. And yes, hello. Yes, sir. तो similarly our in our program जो main function रहता है ना, main function, तो ये main function is working like CEO, chief executive officer जैसा है वो है. Without main function program will not get executed. We cannot execute our program, and therefore main function plays very vital role. And similarly, if any company you are considering without CEO, it is very difficult because chief executive officer is giving the direction. Yes, similarly main function is helping us to execute all the program, whatever lines you are writing, whatever code you will be writing. Suppose you are dealing and you are writing program which will include 1000 lines. 1000 lines का program आपने लिखा है, तो वो सब जो lines है, all lines will be executed by the main function. Main function's work is what? Main function's function is what? To execute all 1000 lines. 1000 लाइंस का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन करेगा. अभी फंक्शंस क्यों यूज करने का है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. व्हाई टू यूज यूजर डिफाइंड फंक्शंस? दैट इज द क्वेश्चन. एंड सो इट्स आंसर इज व्हाट? राइट नाउ वी आर राइटिंग वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स, बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ लेंथी प्रोग्राम्स वेयर नंबर ऑफ लाइंस विल बी मोर, एंड यहाँ पे 1000 लाइंस का प्रोग्राम आपने लिखा है, तो मेन फंक्शन विल बी वेरी इजीली, एंड मेन फंक्शन will execute those 1000 lines. But you can imagine where suppose you are writing code and where you are writing code of 1 lakh lines. 1 लाख लाइन का अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें 1 लाख लाइंस का इंस्ट्रक्शंस लिखा है आपने, और मेन फंक्शन इफ वी आर यूजिंग मेन फंक्शन अलोन, एट दैट टाइम मेन फंक्शन विल बी ओवरलोडेड. एक आदमी को आप 10 काम लगाओ, वो आदमी क्या होगा? ओवरलोडेड होगा. यस, हेलो हेलो. Yes, sir. एक आदमी को हम ज्यादा काम लगाएंगे तो वो ओवरलोडेड होगा. एंड सिमिलरली हियर इफ यू आर राइटिंग प्रोग्राम वेयर 1 lakh lines you have written and only main function you are using to execute all those 1 lakh lines, in that case main function will be overloaded. And similarly, if suppose company is very small and small scale company where five people they are working and as an employee, and such small company you are owner of that company at that time. See here, and your role will be very important. You will be working in that company as a worker, you will be working in that company as a supervisor, you will be working in that company as a manager, you are working in that company as a owner, because number of employees are very less. Yes, hello hello. Yes, sir. In such cases, one person can handle these 5 persons and entire company one person can handle. But if in your company and more number of people they are working, say 1 lakh line people they are working, in such cases it is very difficult to manage all those employees at a time. Therefore what is required? This chief executive officer is appointing and managers. Yes, hello. Yes, sir. 1 लाख लोग है, उनको डिवाइड किया जाता है हर एक टीम के अंदर, और हर एक टीम का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. उसको हम मैनेजर कहेंगे. यस, हेलो हेलो. 10,000 लोग इकट्ठा करके एक टीम बनाया, ठीक है, उसको हम एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे उस टीम के लिए. और chief executive officer will be asking only to manager. Chief executive officer will not ask to all the 10,000 people and which are present in the in that team. Yes, hello. Yes, sir. So chief executive officer will be asking to only manager. And now in this way chief executive officer is assigning certain duties and certain duties to manager, and manager is taking care of all his or her team. And similarly when large number of lengthy programs you are writing where number of lines are more, where number of instructions are more,
we are considering 10,000 1 lakh and 1 lakh lines code you are dealing. In such cases, if you are using main function alone, at that time main function will be overloaded, and because main function has to take care of all those 1 lakh lines, it is very difficult for main function. Right now actually we are writing our code, and entire machine is taking care of all those 1 lakh lines. Program will be executed, but in turn we will not understand, main function will be overloaded. Yes, hello. Yes, sir. To reduce the load, and to reduce the load of main function, and now in case of company we are appointing manager. In case of programming, we will have to use user defined functions. So user defined functions will reduce the load of main function. Now what you will have to do, whatever code in earlier case you are writing in main function, that code and includes 1 lakh lines, that code you will have to divide into subgroups. उसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, अलग भाषा में. मॉड्यूल्स मतलब हमारे यहाँ पे ग्रुप्स रहेंगे, टीम्स रहेंगे, है ना. इन केस ऑफ कंपनी वहां पे हम टीम्स बोलेंगे, उसको ग्रुप्स बोलेंगे. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर कॉलिंग देम एज मॉड्यूल्स. एक मॉड्यूल के अंदर हमने क्या कैसा डिजाइन किया है देखो, है ना. एक मॉड्यूल के अंदर वी आर राइटिंग, है ना, 10,000 लाइन्स. इट मीन्स 10,000 लाइन्स वी आर डिवाइडिंग आवर 1 लाख लाइन्स इनटू 10,000 लाइन्स. उसका एक ग्रुप बनाएंगे हम, है, और उसको हम मॉड्यूल कहेंगे. और एंटायर मॉड्यूल विल बी रिप्रेजेंटिंग वन यूजर डिफाइंड फंक्शन. यस, हेलो 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 हेलो. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये 10,000 लाइंस का एक कोड हमने क्या किया है कि एक ग्रुप में उसको मॉड्यूल बना के लिखा है, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहेंगे. ऐसे हमको कितने यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखना पड़ेगा टू हैंडल 1 लाख लाइन कोड? हेलो, 10. Yes, sir. हाँ, Yes, into sir. 10. So what we are doing, whatever 1 lakh lines we have, we are dividing 1 lakh lines into 10,000 lines, and we are preparing one small group, and that group we are representing it as one user defined function. Such 10 user defined functions I can define as a programmer. Now in this case what will happen, these user defined functions are nothing but sub program. ये main function का sub program रहेगा. Hello hello. ये जो मेन प्रोग्राम था हमारा, जो 1 लाख लाइन हम लिखने वाले थे, ठीक है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 लाख लाइन्स इनटू मेन फंक्शन, व्हाट वी आर डूइंग, वी डिवाइडेड आवर कोड इनटू 10,000 लाइन्स, and we prepared one group, and we are calling it as user defined function. Therefore user defined function is sub program. उसको हम सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं. यस साकिब, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, एक्चुअली मेरे को हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छा भी नहीं है मेरा हिंदी, तो थोड़ा सा फ्लुएंसी में बात नहीं कर सकूंगा हिंदी में. थोड़ा सा मराठी रहता तो थोड़ा सा अलग वे से थोड़ा सा बता सकता था मैं, ठीक है. बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर. हाँ. हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ें है ये, ठीक है. कंपनी का एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे. और ये जो दूसरा है हमारा, जो क्या है, ये प्रोग्रामिंग का, अगर प्रोग्राम लेंदी है, नंबर ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा है प्रोग्राम के अंदर, 1 लाख लाइंस हम यूज करेंगे, तो वो मेन फंक्शन के ऊपर लोड आएगा. हर एक लाइन का इंस्ट्रक्शन, हर एक लाइन का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन का जिम्मा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस. हाँ सर. तो वो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. अगर 1 लाख लाइंस है तो उसको लोड बढ़ेगा, उसका लोड बढ़ेगा, मेन फंक्शन का लोड बढ़ेगा, बिकॉज हर एक लाइन के वहां पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. 1 लाख लाइंस के वहां पे जाके उसको हर एक लाइन का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड फिजिकली. In that case main function will be overloaded. Therefore user defined function will help us to reduce the load of main function. जहां पे हम user defined functions ऐसे 10 लिखे, हर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर 10,000 का कोड लिखा हमने. यस. हाँ सर. हाँ, तो अभी होगा कैसे देखो, है, ये जो मेन फंक्शन है वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा
तो मेन फंक्शन जो है वो खाली यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बुलाएगा है, इसका रोल क्या रहेगा, खाली कॉल करने का। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मैनेजर को कॉल करेगा एंड रिपोर्ट लेगा, हुआ है क्या नहीं काम? यस, हेलो। हाँ सर। ये जो 1000 लोग हैं एक टीम में, वो 1000 लोगों से बात नहीं करेगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खाली एक आदमी को पकड़ेगा, वो जो मैनेजर रहेगा उसको पूछेगा वो। यस Yes, यस sir. सर। Similarly, यहाँ पे when we are writing in our own user defined function, so main function will उसका काम जो है वो क्या रहेगा कि वो खाली कॉल करेगा ये फंक्शन को। एंड similarly here chief executive officer is calling to manager and he is asking for the work. Similarly here main function will be calling to user defined function, and once user defined function will be called, automatically 10,000 lines will be executed. हेलो, ओके। हाँ ओके। लेकिन जो एग्जीक्यूशन का काम है वो मेन फंक्शन नहीं करेगा। ये मेन फंक्शन जो है वो खाली इसको कॉल करेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेगा। वंस यूजर डिफाइंड फंक्शन विल बी कॉल्ड, ऑटोमेटिकली ऑल दीज 10,000 लाइंस विल बी एग्जीक्यूटेड। और वो जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कौन करेगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन करेगा। एंटायर code of 10,000 lines will be executed by the user defined function. Okay? Yes, sir. तो एग्जीक्यूशन का जो काम है, ये 10,000 लाइंस एग्जीक्यूशन करने का काम एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन करेगा। खाली मेन फंक्शन का काम जो है वो क्या रहेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को बुलाओ है, उसको बुलाओ, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा और वो एग्जीक्यूशन करेगा 10,000 लाइंस का। नेक्स्ट फंक्शन बुलाओ, नेक्स्ट फंक्शन बुलाने के बाद नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट होगा मतलब वो एग्जीक्यूट करके पूरा जो लाइंस लिखा है वो एग्जीक्यूशन करेगा। हैव यू अंडरस्टूड बैकग्राउंड ऑफ फंक्शंस, हाउ फंक्शंस आर हेल्पिंग टू रिड्यूस द लोड ऑफ मेन फंक्शन? हेलो, कॉन्सेप्ट हैव यू अंडरस्टूड? हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, Yes, अगर sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वी आर राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम वेयर वी विल यूज आवर ओन यूजर डिफाइंड फंक्शन, and how user defined function is reducing the load of main function, that I will show you in a practically. Will it be okay? Yes, sir. तो अभी हम जाएंगे हमारे टर्बो सी के ऊपर। इज इट विजिबल? हेलो, यस Yes, sir. हाँ। F2 200.c FI a C program to understand functions। पहला इन जनरल देखेंगे, देखो है ना, लिखेंगे एज यूजुअल हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h without main function program will not be executed, so void main। सपोज ये मेन निकाल दिया, ठीक है, अभी सेव किया, अभी अगर हम कंपाइल करेंगे तो वो एरर देगा है ना, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कंपनी है हमारा लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है जो पूरा देखरेख करता है कंपनी का। हेलो हेलो, Yes, sir. हमारा प्रोग्राम है लेकिन मेन फंक्शन मिसिंग है। मेन फंक्शन मिसिंग है मतलब एग्जीक्यूट, एक्चुअली जो आदमी था जो एग्जीक्यूशन करता था हमारा प्रोग्राम, वो आदमी नहीं है वहां पे। मेन फंक्शन इज मिसिंग बिकॉज ऑफ व्हिच प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इफ आई विल राइट एन CLR SCR, तो ये जो फंक्शन है, हमने ये भी फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। तो सेव किया, अगर कंपाइल किया तो वो एरर देगा बिकॉज डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। इट मींस विदाउट मेन फंक्शन यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, हेलो। Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वॉइड मेन लिख रहे हैं। वॉइड मेन ये हमारा मेन फंक्शन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है who is helping us to execute our code। ये हमको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसके अंदर हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो मेन फंक्शन करता है। यस, देयरफॉर मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट्स आवर कोड। हेलो, ओके। अभी अगर प्रोग्राम कंपाइल किया तो एरर नहीं आएगा, एग्जीक्यूट भी करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन है। ये हमारा प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन है, C:\turbo C। इसको हमको क्लियर करने का है, तो अभी रन करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा है ना।
जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो CLR SCR फंक्शन को कॉल करके उसने आउटपुट स्क्रीन क्लियर किया। यस, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो है ना, अभी देखो है ना, यहाँ पे void main जो मैंने सेव नहीं किया शायद प्रोग्राम को, तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको हम थोड़ा सा पहला वाला प्रोग्राम याद है कि देखो, फर्स्ट प्रोग्राम विच वी हैव सीन है ना, गेट ch लिखेंगे, यहाँ पे वेलकम मैसेज दिखाने का है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट्स लिखे इसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वी हैव, हेलो हेलो, कितने हैं स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन के अंदर, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वी हैव रिटन, 1 2 3 sir. 3 3 statements we wanted to execute, 3 statements we wanted to execute। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है एंटायर प्रोग्राम का, वो कौन कर रहा है, मेन फंक्शन कर रहा है। यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हमारा जो कोड है पूरा का पूरा 3 लाइन का, ये जो एग्जीक्यूशन का काम है वो मेन फंक्शन कर रहा है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आर लेस, देयरफॉर मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा वो पूरा एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए हमने फंक्शन का भी कभी कभी यूज नहीं किया है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वी आर नॉट यूजिंग, वी हैवंट यूज्ड, एंड नाउ वी विल बी यूजिंग एन our user defined function, because if you wanted to write program which includes and more number of lines, अभी यहाँ पे 3 है तो 3 को एग्जीक्यूट करने में मेन फंक्शन को ज्यादा लोड नहीं आएगा। यस, अभी जो हमने प्रोग्राम्स देखे हैं अभी तक, ठीक है, मैक्सिमम 50 लाइंस 60 लाइंस वी हैव रिटन। यस, हेलो, Yes, sir. मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखे वहां पे हमने कितना लाइंस का कोड लिखा है, 50 लाइंस 60 लाइंस, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्राइसिस वगैरह वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। डिस्प्ले द पैटर्न वाला वो प्रोग्राम देखे तो 20 लाइंस मैक्सिमम रहेगा। यस, नंबर ऑफ लाइंस वेर लेस, नंबर ऑफ लाइंस वेर लेस। यस, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो अभी क्या है देखो है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो रहेगा है ना, वो कैसे हेल्प करेगा हमको। अभी ये जो 3 लाइंस है, ये हमारे पास 3 लाख लाइंस है ऐसा आप सोचो, या 1000 लाइंस है ऐसा सोचो। इंस्टेड ऑफ 3 लाइंस यू कंसीडर आई हैव रिटन 10,000 लाइंस कोड। ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ। और ये जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा का पूरा हमको दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को देने का है, जो हमारा वेलकम मैसेज आउटपुट दिखाएगा। तो वेलकम मैसेज है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए इसको कट किया यहाँ से, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया। यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका डिक्लेरेशन करना पड़ता है, वॉइड डिस्प्ले बोल के कुछ भी नाम दे सकते हैं हमारे खुद के फंक्शन को, डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG ये नाम दिया मैंने। दिस इज आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन विच आई हैव डिक्लेयर्ड, यहाँ पे लिखता हूं मैं, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और नाम क्या दिया है उसको, डिस्प्ले MSG। डिस्प्ले MSG मीन्स व्हाट, जो हमारा वेलकम मैसेज था वो हमको इस फंक्शन से डिस्प्ले करने का है। हेलो हेलो, इसको हमको काम, उसको हमको काम असाइन करने का है। ये जो डिस्प्ले MSG नाम का फंक्शन है उसको हमको काम असाइन करने का है। उसका काम क्या रहेगा, जो वेलकम मैसेज हमने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाया है उसको वो दिखाने का काम देने का है। वेलकम मैसेज के ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वेलकम मैसेज दिखाओ ऐसा बताने का है उसको। यस, हेलो हेलो हेलो, ओके। सर ते void लिहायचंच का प्रत्येक फंक्शनच्या मागं? हाँ, वो void क्यों लिखने का है उसके भी पीछे थोड़ा सा रीजन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कमेंट पास करता हूँ, और ये अगर मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है, अभी हम फंक्शन सीख रहे हैं तो ये क्लियर करेंगे है ना, void क्यों लिखने का, why टू राइट void एंड। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट था। यस, हेलो, ऐसा था प्रोग्राम हमारा। इनिशियली void लिखा था मेन के पहले, ये मेन फंक्शन के पहले भी हम void लिखते हैं। अगर void नहीं लिखा है ना तो क्या हो रहा है देखो है ना, I will save this program, I will compile है ना, first of all I will compile, so it will be showing है ना one warning, error नहीं देगा वो, ठीक है, it will be throwing है ना one warning। वो warning अगर आप रीड करोगे तो वो बोल रहा है ना, function should return a value। yes, हेलो, Yes, sir. तो ये जो वार्निंग है, ये वार्निंग हमको नहीं चाहिए एवरी टाइम इन आवर प्रोग्राम। टू अवॉइड दिस वार्निंग वी आर यूजिंग वन डेटा टाइप
उसको void बोलते हैं, ठीक है। void जो है वो डेटा टाइप है, जैसा हमारा int रहता है, char रहता है, float रहता है, सिमिलरली void is our data type। एंड जब void हम मेंशन करते हैं मेन फंक्शन के पहले, तो वो जो वार्निंग दे रहा था वो वार्निंग नहीं देता है हमको। हेलो 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 हेलो। यस सर। ठीक है। अगर void नहीं लिखा तो वो वार्निंग देता है, ठीक है। तो वार्निंग क्या है? फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। इसका मतलब क्या है? जो मेन फंक्शन हमारा था वो void टाइप का नहीं है, वो int टाइप का बनता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन विल बिकम, ठीक है, बिकम कैसा फंक्शन? इंटीजर टाइप का फंक्शन। हेलो हेलो। Yes, sir. अगर void लिखा तो वो void टाइप का रहता है। void टाइप मतलब एम्प्टी डेटा टाइप। void का अगर मीनिंग आप देखोगे है ना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू क्लिक ऑन दिस void। अगर आप void के ऊपर क्लिक करोगे, हमको वो प्रोग्राम हमने बहुत बार एग्जीक्यूट किया है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर माउस जो है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज एंड you will have to use only keyboard, and this is the drawback of this application for Windows 10 operating system। okay, hello hello। सर so have you understood? अगर void नहीं ना बिना लिखे है ना, without writing this void when you are using your main function in the program, at that time what happens? Machine considers main function इट्स डेटा टाइप विल बिकम ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का रहेगा। तो इसके लिए आपको वो अगर वार्निंग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ये रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप का है। कौन सा भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने 0 लिखा, सेव किया इसको, ठीक है। अगर अभी हम कंपाइल करेंगे तो वो जो वार्निंग दिखा रहा था ना, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, वो वार्निंग नहीं दिखाएगा। हेलो, वार्निंग चला गया। हेलो। यस सर। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, विदाउट राइटिंग दिस रिटर्न स्टेटमेंट, if you will compile your program, so it will be throwing one warning, function should return a value. By default its type of main function is integer, therefore you will have to integer return value, you will have to return an integer value to this main function। okay, ओके सर। ओके। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है ना, फ्लोट, तो मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ये रिटर्न क्या है वो हम बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हेलो। फ्लोट भी लिख सकते हैं हम, प्रोग्राम रन होगा, लेकिन हमने अभी तक यूज नहीं किया है ऐसा कुछ। आई थिंक देखो एरर नहीं आया, प्रोग्राम रन हुआ। यस, फ्लोट मेन लिख के भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। क्यार लिखेंगे, क्यार, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो कैरेक्टर टाइप का फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न हमको कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ रिटर्न करेंगे। यस, हेलो हेलो। ओके सर। हाँ, तो एवरी टाइम इफ सपोज आई डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू, in that case void is very easy data type for functions के पहले void लिखा तो वो फंक्शन जो है जिसको आप लिख रहे हो उसको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूं मैं व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जाके, ठीक है। अभी देखो इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, इसको मैंने void लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन को रिटर्न करने का जरूरत नहीं है कुछ। यस, वी आर नॉट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। यस, हेलो हेलो। यस सर। अगर दूसरा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा void, अभी हमने जो लिखा है ना, डिस्प्ले msg बोल के कुछ फंक्शन है, डिस्प्ले अंडरस्कोर msg, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगर यहाँ पे void लिखा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन आल्सो शुड नॉट सपोज टू रिटर्न एनी वैल्यू। अगर यहाँ पे इंट लिखा तो वो जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा कुछ इंटीजर वैल्यू टू द मेन फंक्शन। अभी क्या रिटर्न करने का मतलब क्या है देखो है, अगर ये मेन फंक्शन है, मेन पर्सन है, तो वो अगर किसी से काम करवा के ले रहा है, यहाँ पे
यूजर डिफाइंड फंक्शन से मेन फंक्शन काम करवा के ले रहा है। यस, हेलो, यस यस सर। सर। अपना खुद का काम जो था है ना, वेलकम मैसेज जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना था, वो जो मेन फंक्शन का काम था, वो मेन फंक्शन खुद का काम इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन को देगा है ना, और वो यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद वो काम करेगा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ मेन फंक्शन। उसके बदले है ना, मेन फंक्शन के बदले ये डिस्प्ले एमएसजी फंक्शन वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो यहाँ पे रिटर्न करने का कुछ मतलब नहीं है, ये रिटर्न स्टेटमेंट हम बाद में देंगे। वॉइड क्यों लिखने का है, समझ में आया क्या? हेलो, वॉइड क्यों लिखने का है? हेलो, टू अवॉइड दैट वार्निंग है ना। कौन सा वार्निंग आ रहा है? रिटर्न करो है ना, वो फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन विल रिटर्न है ना सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू हर एक फंक्शन रिटर्न करता है। वो जब हमारा रिटर्न बोल के पॉइंट है सिलेबस में, वो आगे है, वो जब आएगा तब मैं वो रिटर्न स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। हेलो, ओके। ओके सर। वॉइड लिखने के बाद वो फंक्शन जो है वो void क्यों नहीं देता है, ऐसा भी समझ के लो है ना, समझो है ना काय म्हणणार बघा, समझ के लो, समझो। यस, सर अर्थ काय सर voidचा? इंटचा कसा इंटिजर तसा voidचा अर्थ काय? void means empty data type. void means empty मतलब कुछ नहीं है। कोई भी स्टोर कर सकता है सर, ये क्या? हाँ, हेलो, कुछ भी स्टोर कर सकता है ना उसमें? हाँ, कुछ भी मतलब उसका कैसा है देखो है ना, void लिखा तो उसका मीनिंग क्या है कि अभी देखो है ना, कुछ नहीं है ना, ये अर्थ के बाहर कुछ नहीं है ना, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन स्पेस तो है। हेलो, स्पेस का मतलब वॉइड ले सकते हैं हम ऐसा। हेलो, तो कौन सा डेटा टाइप नहीं है? डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वॉइड है। एंड when we are using void, at that time we are giving authority to that function should not supposed to return any kind of value. अभी यहाँ पे हम void डिस्प्ले मैसेज बोल के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी ये void वाला डेटा टाइप हम देंगे, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो मेन फंक्शन ने कुछ काम दिया है उसका रिपोर्टिंग करने का कुछ जरूरत नहीं है, इसको वापस रिपोर्टिंग करने का कुछ जरूरत नहीं है। अगर ये सीईओ जो है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसने अगर मैनेजर को कुछ काम दिया, मैनेजर को, तो void लिखा मतलब क्या है कि मैनेजर को काम असाइन किया, 101% श्योरिटी है वो मैनेजर वो काम करेगा कंप्लीट। हेलो, उतना फेथ है ना, उतना बिलीफ है, उतना ट्रस्ट है। अगर यहाँ पे हम इंट लिखेंगे या कुछ फ्लोट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है ना, मैनेजर के ऊपर श्योरिटी नहीं है, तो इसमें इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा मेन फंक्शन को। हेलो, यस सर। समझते को बघा है। void का मतलब क्या है कि empty data type. It means when you are writing void before main function, you should not suppose that function should not supposed to return any value because its type is empty data type. यहाँ पे return करने का कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा मीनिंग है ना। void छोड़ के है ना, void छोड़ के if you will be using any data type, long लिया, double लिया, unsigned लिया, long int लिया, तो ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप है, इसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। void ऐसा डेटा टाइप है जिसको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? हेलो, यस, यस सर। थोडंसं बघा ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेगळा है, विचित्र है ना। सो अभी देखो है ना, अभी यहाँ पे हमको ये जो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करने का है, देयरफॉर आई विल राइट void. ओके, void. Similarly, here also we are writing void display underscore msg. This is declaration. अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तीन चीजें हैं। फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर, यू विल हैव टू कंसीडर। पहला जो रहेगा वो डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। नंबर 2 डेफिनेशन, नंबर 3 कॉलिंग। ओके, हर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हम खुद लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। हेलो, जैसा CLR ACR है, printf है, getch है, all these are standard library functions. Similarly,
display underscore msg, this is our own function, मेरा खुद का फंक्शन है वो. yes, hello, Yes, sir. I have defined, I am going to define it. उसने उसको क्या काम देने का है, वो उसका फंक्शन क्या रहेगा, that I will be defining. Therefore, it is user defined function. And when you are using any user defined function in your program, at that time you will have to consider three parts. Declaration उसका करना पड़ेगा, definition वो उसका काम क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, उसको बुलाना भी पड़ेगा, उसको कॉल भी करना पड़ेगा. हेलो, यस. Yes, sir. तो ये जो है वो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. हमने डिक्लेयर किया है कि मतलब ये डिस्प्ले अंडरस्कोर msg नाम का एक फंक्शन है. अभी वहां पे कैसा रहेगा, सीईओ के जगह पे कैसा रहेगा कि वो जो कोई मैनेजर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इनिशियली, अपॉइंटमेंट ऑर्डर देके, यस, ऑफर लेटर देके, कंपनी में आप मैनेजर हो ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा. हेलो, Yes, sir. Similarly, when user defined function we are using, at that time we will have to declare that function. This is the first thing. Next, एक बार आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, बाद में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये काम करो. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो वो आदमी जो है, हमारा मैनेजर जो है, वो कंपनी के अंदर वो क्या काम करेगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ, तुम ये काम करो, वो काम करो, क्या जो भी कुछ काम रहेगा, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ आई एम राइटिंग एन डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. और वो कहाँ हम लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के बाद. हेलो, यस, कुठे लिहायचं कळलं का? Yes, sir. डिक्लेरेशन वी आर डिक्लेयरिंग आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन बिफोर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के पहले है ना, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन डिक्लेयर आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन. डिफाइन कहाँ पे होगा, वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है. इनसाइड द मेन फंक्शन वी कैन नॉट डिफाइन, बिकॉज मेन फंक्शन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. उसके अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे मैनेजर को. यस, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो आउटसाइड दी मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के बाद है ना उसका डेफिनेशन लिखेंगे. तो डेफिनेशन कैसा लिखा जाता है, जैसा हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया है. here selected code is definition of main function. मेन फंक्शन का ये डेफिनेशन है, मतलब मेन फंक्शन जो है वो CLR SCR फंक्शन को बुलाएगा. यहाँ पे ये CLR SCR फंक्शन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसा ही फंक्शन है, बट इट इज लाइब्रेरी फंक्शन whose meaning is already defined by Dennis Ritchie and his team. 1972 में ही लिखा है उसको, उसकी टीम ने, AT&T बेल लैब्स अमेरिका में. यस, वो हम सीख रहे हैं, वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. हेलो, अभी हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर होता है CLR SCR से. उसके लिए क्या कोडिंग लिखा होगा, यू कैन इमेजिन. वो कोडिंग हम यहाँ पे कर नहीं रहे, डायरेक्टली हम CLR SCR फंक्शन को यूज कर रहे हैं. यस, हेलो. Yes, sir. तो उसका डेफिनेशन जो लिखा है, उसका जो कोडिंग लिखा है वो डेनिस रिची और उसका टीम ने लिखा है. वी आर नॉट राइटिंग, वी आर नॉट डिफाइनिंग CLR SCR फंक्शन को क्या काम करने का है, that we are not defining, already it is defined, pre-defined है वो. Directly we are calling that function in our main function. Main function calls to CLR SCR function and immediately after calling CLR SCR function का जो भी कुछ ड्यूटीज है वो कंप्लीट करेगा वो. तो उसका ड्यूटी क्या है कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करो, तो वो काम कर रहा है. यस, सिमिलरली हमारा जो ये डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG नाम का फंक्शन है उसको हम असाइन कर रहे हैं वर्क. जो वेलकम मैसेज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मेन फंक्शन दिखा रहा था, उसका पूरा काम, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन था, सिंपली ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे को. उसका एक लाइन कम हुआ, मेन फंक्शन का एक लाइन कम हुआ. यस, हेलो, 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 हेलो. हाँ सर. तो ये जैसा हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है वैसा ही हमको यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. तो सिमिलरली आई एम राइटिंग, यू कैन ऑब्जर्व एंड देयर इज सिमिलैरिटी इन डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन एंड इन डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG void
जो नाम दिया है वही लिखने का, डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG राउंड ब्रैकेट ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग करली ब्रैकेट। केयरफुली ऑब्जर्व करो, जैसा मेन फंक्शन लिखा है वैसा ही मैंने लिखा है। यस, हेलो। Yes, sir. मतलब डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं आता है, सेमीकोलन आया तो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। हेलो, ये देखो ऊपर, हेलो। यस यस, यस सर। वो डिक्लेरेशन हुआ। Yes, sir. कोलन से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे देखो है ना, डायरेक्ट हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मेन फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे सेमीकोलन दिया तो डिक्लेयर हुआ वो। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डिक्लेयर करने का जरूरत है क्या? वो खुद ही मालिक है, वो खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो खुद का डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो क्या डिफाइन, मतलब क्या काम करेगा वो लिखने का है हमको, इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, मेन फंक्शन को डायरेक्ट डिफाइन कर रहे। हेलो हेलो, यस। Yes, sir. तो यहाँ पे डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG फंक्शन वी आर डिफाइनिंग, एंड इन दिस फंक्शन सिंपली आई विल पेस्ट दैट स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट था वेलकम वाला, मैसेज डिस्प्ले करने वाला, वो कहाँ पे लिखा हमने कोड? इसके अंदर लिखा। तो हमारा डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG नाम का जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इट विल बिकम सब प्रोग्राम। हमारा मेन प्रोग्राम का वो सब प्रोग्राम हो गया, इसलिए हम कुछ बुक्स में उसको सब प्रोग्राम भी बुलाते हैं फंक्शन को। यस, हेलो। यस सर। अभी खाली इतना लिखा है मैंने, ठीक है। डेफिनेशन, वो डिक्लेरेशन, इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है उसको हम डिक्लेरेशन बोलेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है, वो कैसा करने का उसका सिंटैक्स वगैरह नोट्स में दिया है, आप पढ़ो वो, ठीक है। डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, क्या है। ये जो है वो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अभी ये जो तीन पार्ट थे, डिक्लेरेशन डेफिनेशन, ये दोनों हुआ। अभी मिस क्या हुआ है? हेलो हेलो, कॉलिंग। Calling. ठीक है। मेन फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर वो डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस कॉल किए हैं, सिमिलरली यू विल हैव टू कॉल योर यूजर डिफाइंड फंक्शन इन द मेन प्रोग्राम। इफ यू आर नॉट कॉलिंग योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो फंक्शन काम नहीं करेगा। हेलो, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बुलाया नहीं वो मैनेजर को, तो वो काम नहीं करेगा, वो रिपोर्ट नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। हेलो, तो मीटिंग लेता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो उनके बार बार मीटिंग्स रहते हैं। तो मीटिंग्स में क्या करना पड़ता है, वो जो मैनेजर रहता है वो रिपोर्ट देता है, वीकली रहेगा, मंथली रहेगा, ऐसा कुछ काम जो किया है ना टीम ने। तो वहां पे क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो बुलाता है, किसको बुलाता है? मैनेजर्स को बुलाता है। यस, यस सर। जब बुलाएगा तभी काम होगा, ऐसा रहता है। देखो अभी ये जो जमाना है ना, अभी पुराने जमाने जैसा नहीं है। एक बार काम दिया, वो काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं हमको, हमको वो फॉलो अप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर वी आर नॉट कॉलिंग, एंड हम पहले बिना कॉल करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। पहले कंपाइल किया, एरर दिया क्या? नहीं दिया, ठीक है। लेट अस एग्जीक्यूट। तो कुछ आया क्या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर? वेलकम मैसेज आया क्या? हेलो, मशीन इज नॉट डिस्प्लेइंग वेलकम मैसेज, इज इट? No, sir. दिखा नहीं रहा है वो। क्यों नहीं दिखा रहा है? जब तक आप डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा है। तो जैसे हमने CLR SCR फंक्शन को कॉल किया है, जैसे हमने getch फंक्शन को कॉल किया है, सिमिलरली यू कैन कॉल योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, योर ओन यूजर डिफाइंड फंक्शन यू कैन कॉल। एंड कैसा कॉल होता है देखो ना, डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये जो है इसको हम कॉलिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। कुछ डाउट? हेलो हेलो, No, sir. नो सर। here this is calling of CLR SCR function, this is calling of our user defined function, this is calling of getch function. CLR SCR function and getch function, these are predefined functions whose meaning is already defined, so simply we are calling. But in case of user defined function, we will have to call our own function. तो ये function भी हमने call किया है। अगर मैंने CLR SCR फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर नहीं करेगा। यस, Yes, sir.
अगर गेट चेंज फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वो आउटपुट स्क्रीन को आफ्टर एग्जीक्यूशन वो दिखाएगा नहीं आउटपुट स्क्रीन। हेलो, यस, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। देखो है ना, तो पहले क्या करेंगे, तीनों फंक्शंस कॉल करेंगे है ना। मेन फंक्शन इज कॉलिंग, मेन फंक्शन इज कॉलिंग टू CLR SCR, मेन फंक्शन इज कॉलिंग टू display underscore MSG function, main function is calling to get state function, three functions, main function is calling because of which program will be executed as per our requirement, और वो वेलकम फंक्शन दिखा रहा है अभी। यस, हेलो। Yes, sir. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये फंक्शन के अंदर आप जो भी कुछ डिफाइन करोगे है, जो भी कुछ प्रोग्राम लिखोगे है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG फंक्शन करेगा। ठीक है, मेन फंक्शन खाली उसको बुलाएगा, मतलब मेन फंक्शन का लोड कम हुआ यहाँ पे। मेन फंक्शन प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, मेन फंक्शन जो है, अभी मैं थोड़ा सा चीजें चीजें हैं, मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको कमेंट पास करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन खाली क्लियर होगा, ब्लैंक आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा है वो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एंटायर कोड जो है, मतलब ये वाला CLR SCR का कॉलिंग भी है, उसको हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को सोचो आप। हेलो, यस, इन दिस वे आल्सो वी कैन राइट हेलो। तो और थोड़ा काम कम हुआ किसका, हेलो, हेलो, Main function. मेन फंक्शन का और थोड़ा काम कम हुआ है ना। मेन फंक्शन का जो काम था है ना, CLR SCR फंक्शन को बुलाओ, बाद में डिस्प्ले MSG फंक्शन को बुलाओ, बाद में गेट CH फंक्शन को बुलाओ। तो तीन आदमियों को बुलाने का काम था, तो वो हमने क्या किया है कि CLR SCR फंक्शन को भी है डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लिखा, गेट CH फंक्शन को भी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लिखा। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मेन फंक्शन का काम और थोड़ा रिड्यूस हुआ। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे खाली मेन फंक्शन बुलाएगा है ना, डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG फंक्शन को, तो वो पूरा है ना आउटपुट स्क्रीन भी हमारा क्लियर होगा है ना, वो वेलकम मैसेज भी दिखाएगा, गेट CH फंक्शन को भी दिखाएगा, गेट CH फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट स्क्रीन भी दिखाएगा है ना। तो ऐसा भी वो अगर कंपाइल करें हम प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट होगा है ना, नो एरर। अभी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। यस, हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। Yes, sir. Therefore, and a very important concept why we are using our user defined function, because user defined function is helping us to reduce the load of the main function। यहाँ पे main function का load जो है वो कम हुआ है। अभी इसी प्रोग्राम में मैं और एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, void sum नाम का, जो एडिशन करेगा है। दिस इज डिक्लेरेशन। यस, हेलो, हेलो, हेलो। Yes, हाँ sir. Yes, sir. यहाँ पे डेफिनेशन देखो, void sum, इसको सब प्रोग्राम क्यों बुलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है, हमारा जो इन जैसे प्रोग्राम लिखते थे वैसे ही लिखने का है हमको। CLR, तो देखो है ना, यहाँ पे CLR SCR लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू आर यूजिंग CLR SCR। तो प्रिंट है, फटाफट लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, /n एडिशन, सॉरी, यहाँ पे पहले ए का वैल्यू लेना पड़ेगा। प्रिंट है, सॉरी प्रिंट एफ लिखा है, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ an। हाउ वी कैन एंटर वैल्यू ऑफ a, scanf %d ampersand a, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू एंटर किया, एम्परसेंड b। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, c इज इक्वल टू a प्लस b, जो हमारा एडिशन वाला प्रोग्राम का है ना वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे। /n एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू %d, c। यस, हेलो, समझ में आ रहा है कि कुछ, व्हाट इज मीन बाय डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे सम फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हमने, सब प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे समेशन ऑफ टू numbers as well as this function is helping us to accept values of a and b through keyboard। yes, everything will be done by the sum function। hello, hello। Yes, यस सर। अभी हम क्या करेंगे, ये सम फंक्शन को बुलाएंगे नहीं यहाँ पे, तो खाली डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो खाली वेलकम मैसेज दिखाएगा। यस,
जब तक हम सम फंक्शन को बुलाएंगे नहीं, मतलब मेन फंक्शन जब तक सम फंक्शन को बुलाता नहीं है तब तक वो वैल्यूज ऑफ ए एंड वैल्यूज ऑफ बी हमारे से लेके है ना एडिशन करके दिखाएगा नहीं। यस मशीन, हेलो। यस सर। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर है ये डिस्प्ले फंक्शन के बाद हम हमारा फंक्शन बुलाएंगे है ना सम फंक्शन। हेलो, दिस इज कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन। हेलो, जैसे हमने Yes, sir. डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन कॉल किया है, सिमिलरली वी आर कॉलिंग आवर सम फंक्शन। जैसे ही सम फंक्शन कॉल करेंगे सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, इसलिए ये सब प्रोग्राम हो गया। यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस व्हाट, इट इज सब प्रोग्राम, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम ही है लेकिन मेन फंक्शन के बिना है, देयरफॉर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यस, हेलो। यस सर। Here I am executing now. First of all, it will be calling, main function will be calling to display underscore image function. Therefore, welcome message जो वो execute होगा, उसके बाद some function will start and executing itself after pressing enter key. Yes. यस सर। Yes, sir. अभी देखो गेट ch जो है वो यहाँ पे लिखा है। Therefore, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है देखो है। तो नॉर्मली जनरली क्या करने का है हमको, ये जो CLR SCR जो है ये इधर लिखने का है। क्यों लिखने का, आप देखो। आप अभी हमको आउटपुट स्क्रीन जो है दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है अच्छे से। तो अभी इसका मीनिंग क्या हुआ वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया, अभी देखो, अभी रन करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग वे से आउटपुट दिखाएगा। वेलकम फंक्शन, वेलकम वो डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हुआ, बाद में हमको आउटपुट स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। अभी एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। आई एम प्रेसिंग F7 की, बाय प्रेसिंग F7 की प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके, स्टेप बाय स्टेप। Always execution of the program will be started with है ना main function। F7 दबाने के बाद वो CLR SCR फंक्शन को कॉल करेगा है ना, मेन फंक्शन will call to CLR SCR function। Let us check it on output screen what is happening। So it is our previous output screen। After pressing F7 की ये CLR SCR फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब मेन फंक्शन ने बुलाया, CLR SCR फंक्शन आया, उसने एग्जीक्यूशन किया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हुआ। यस, हेलो। यस सर। After this, we are calling our user-defined function display underscore MSG, and after pressing F7 की हमारा जो कंट्रोल है वो कॉलिंग से जंप मार के हमारा जो डेफिनेशन लिखा है डिस्प्ले अंडरस्कोर MSG वहां पे वो कंट्रोल जाता है। देखो अभी गया, हेलो, गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। It means control of the computer, control of the machine is jumping from calling of user defined function to the definition of user defined function, and in definition whatever you have written all those instructions machine execute one by one, okay, hello। यस सर। Yes, sir. अभी यहाँ पे एंड हुआ, डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन का एंड हुआ। आई एम प्रेसिंग अल्ट F5 की, तो उसने वेलकम मैसेज दिखाया यहाँ पे। यस, मतलब एग्जीक्यूशन हुआ, किसका एग्जीक्यूशन हुआ, कंप्लीशन, डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी नाम का जो फंक्शन था उसका खुद का काम एग्जीक्यूट हुआ। यस, हेलो। यस सर। अभी यहाँ से है ना, यहाँ से वापस हमारा जो कंट्रोल है ना कंप्यूटर का, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के वहां पे जाएगा। कॉलिंग ऑफ डिस्प्ले ऑफ अंडरस्कोर एमएसजी नाम का फंक्शन का कॉलिंग हुआ, अभी वो यहाँ पे जंप मारेगा सम फंक्शन के, कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन के ऊपर जंप मारेगा। F7 की आई एम प्रेसिंग, सो इट विल गो बैक टू मेन फंक्शन एंड इट विल कॉल टू सम फंक्शन। यस, हेलो। Yes, sir. यस सर। Once main function will call to some function, again same thing will happen for some function also। Control of the computer will jump from and calling of some function to definition of some function। Yes, Yes, sir. तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा वो। Have you understood how programs, how actually program will be executed when you are using user defined functions in the program। अभी यहाँ पे समेशन करेगा, बाद में रिजल्ट दिखाएगा। ये एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद बैक टू कहाँ पे जाएगा, मेन फंक्शन, और बैक टू मेन फंक्शन गेट ch था हमारा, तो वहां पे जाके हमको आउटपुट स्क्रीन दिखी, इट विल डिस्प्ले आवर आउटपुट स्क्रीन। यस, इट विल बी होल्डिंग आवर आउटपुट स्क्रीन एंड we are able to watch, we are able to observe our output screen। Yes, hello। Yes, sir. यस सर।
So have you understood how program is getting executed when we are using an user defined function? Okay. Yes, sir. अभी अभी यहाँ पे थोड़ा सा सम फंक्शन जो है वो पहले बुलाता हूँ, क्या होगा? हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट है. How you are calling accordingly that particular function will be called and it will be executed first. डिस्प्ले फंक्शन बाद में लिखा है, सम फंक्शन पहले लिख रहे हैं, सम फंक्शन पहले कॉल कर रहे हैं, ठीक है. मेन फंक्शन इज कॉलिंग सम फंक्शन फर्स्ट. तो हमारा सम फंक्शन का जो कोड है, सम फंक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. ओके. यस सर. देखो अभी है, अभी वेलकम नहीं आया. हेलो. यस. Yes, sir. अभी पहले समेशन होगा है ना, बाद में वेलकम आएगा. हेलो. हेलो. Yes, यस sir. सर. समझ लगा? So sequence of calling will also matter. Sequence of calling will also matter a lot. One more interesting thing, why to use a function here, reusability, and one code we can use again and again, that is the reusability of code. अभी ये sum function के अंदर है, sum function के अंदर I can call and display function. Yes. Again in this display function, display underscore msg function, I can call sum function. Hello. हेलो. हेलो. Yes, sir. तो सम फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन भी बुला रहा है और डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन भी बुलाएगा, तो सम फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट दो बार होगा. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सो वन यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन कॉल टू अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन. यस. यस सर. यस वन सर. यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन कॉल टू अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन. देखो अभी, तो सबसे पहले जो ये मेन फंक्शन बुला रहा है, ठीक है, बाद में वेलकम फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी फंक्शन के अंदर वेलकम वाला मैसेज हमने डिस्प्ले किया है, और उसके बाद है ना इमीडिएटली वी आर कॉलिंग आवर सम फंक्शन, बिकॉज ऑफ व्हिच सम फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड एन सेकंड टाइम एंड वी आर एंटरिंग एन डिफरेंट वैल्यूज. यस. हेलो. हेलो. Yes, sir. I need last 5 minutes where I'll be telling you and how we can write our own and header files. अभी देखो, इसको सेव किया, सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है. सेव एज करके 200.h नाम दे रहा हूँ, ठीक है. हेलो. सेम फाइल को, हेलो, हेडर फाइल बना रहा, हेडर फाइल, हाउ टू क्रिएट आवर ओन हेडर फाइल. जैसा stdio.h हेडर फाइल रहता है, conio.h हेडर फाइल रहता है, similarly you can create your own header file. So 200.h is our header file, and in this header file we will define our own user defined functions which we defined in 200.c. 200.c जो फाइल था उसके अंदर ही हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है हमारा फंक्शन. इंस्टेड ऑफ इट व्हाट आई एम डूइंग, 200.h जो हमारा हेडर फाइल रहेगा उसमें हम खाली उसका डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन करेंगे. सब कुछ निकाल रहा हूँ ये, ठीक है. ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन किसका, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का. हेलो. ओके. हेलो. Yes, sir. So this is our header file. This is our user defined header file, which we have defined, and we are defining our own functions in this file. इस फाइल के हम अंदर है, हमने 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 हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस था वो डिक्लेयर एंड डिफाइन किया है. यस. हेलो. तो ये जो हमारा हेडर फाइल खुद का हुआ है ना, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कहेंगे हम इसको. जैसा यूजर डिफाइंड फंक्शन है वैसा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल हो गया हमारा. ओके. हेलो. 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 यस सर. तो ये जो फाइल है वो क्लोज कर रहा हूँ मैं, 200.h. अभी हमारा जो पहला वाला फाइल था 200.c वाला, दैट आई एम ओपनिंग. अभी यहाँ से डिक्लेरेशन उड़ा रहा हूँ मैं, ठीक है. दैट आई एम रिमूविंग, दैट आई एम डिलीटिंग, एंड डेफिनेशन भी डिलीट कर रहा हूँ. यस. क्या क्या किया समझ में आया? हेलो. 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 यस. हाँ,
हमारा जो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन था यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, दैट आई डिलीटेड है एंड दैट आई डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन आवर हेडर फाइल। वो हेडर फाइल के अंदर लिखा है, यस। कौन सा? ये 200.h यहाँ पे सेव किया है वो। हेलो, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हेलो, यस। Yes, sir. तो अभी अगर मैं कंपाइल करूंगा है ना मेरा प्रोग्राम, तो वो एरर दिखाएगा, है ना? नहीं दिखाया, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तब दिखाएगा। हेलो, यस। Yes, sir. तो वो एरर क्या रहेगा? सम जो फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी नाम का जो दो फंक्शन यूजर डिफाइंड है, उसको पता नहीं चल रहा है ना, ये 200.c जो फाइल है मशीन को समझ में नहीं आ रहा है ना। डिस्प्ले अंडरस्कोर एमएसजी अनडिफाइंड मॉड्यूल अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर सम, यस। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन जो डिफाइन किए, उसको वो रेफरेंस नहीं कर पा रहा है। जैसे हम CLR STR गेट CH को रेफरेंसिंग के लिए हैश इंक्लूड stdio.h conio.h हेडर फाइल्स लिखते हैं, यस। अगर डिले फंक्शन यूज करने का है तो dos.h हेडर फाइल वी आर इंक्लूडिंग। एग्जिट फंक्शन लिखने का है तो process.h हेडर फाइल वी आर इंक्लूडिंग एट द टॉप, यस। Yes, sir. सिमिलरली ये जो दो फंक्शंस है वो कहाँ पे लिखा है, वो हेडर फाइल यू विल हैव टू इंक्लूड इन दिस प्रोग्राम टू रिमूव दिस टू रिमूव दिस टू एरर्स। ये जो दो एरर दिखा रहा है वो अगर हमको रिमूव करने का है ये प्रोग्राम से है, तो हमको हमारा जो हेडर फाइल है, जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, दैट वी विल हैव टू इंक्लूड ओवर हियर, देन these two errors we can remove, okay? हेलो। तो कैसे है ना, जैसे हमने हैश इंक्लूड लिखा है वैसे ही हम हैश इंक्लूड हमारा जो फाइल है 200.h, सो दिस इज आवर क्या बोलेंगे उसको, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, यस। हेलो, दैट वी हैव इंक्लूडेड। अभी नॉर्मली हम ऐसे इंक्लूड करते हैं, अगर ऐसा इंक्लूड किया तो वो एरर देगा फिर से, ओके? ऐसा एरर देगा वो। टू अवॉइड दिस एरर, इट मीन्स वी कैनॉट इंक्लूड आवर हेडर फाइल्स इन दिस वे। ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल हुआ, यस। हमने नहीं Yes, लिखा है sir. ये किसने लिखा है? डेनिस रिची एंड हिज टीम। हमने नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है खुद से। तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, तो इसमें डिफरेंशिएट है ना करने के लिए, इंस्टेड ऑफ दिस वी आर यूजिंग डबल कोट्स के अंदर लिखने का। हेलो, user defined functions, if you are including in your file, you will have to mention in double quotes. You cannot use greater than and less than symbol, उसको हम टैग बुलाते हैं, टैग, ओके? Yes, sir. अभी देखो, अभी एरर नहीं दिखाएगा वो और प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होगा है। अभी यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी नहीं दिया है, डिक्लेरेशन भी नहीं दिया है, लेकिन वो सब कुछ कहाँ पे दिया है? 200.h जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड किया है हमने। हेलो, यस। अभी दो बार कॉल किया है शायद, पता नहीं, यस। हेलो। Yes, sir. So have you understood how to create our own header files, how to declare our user defined functions? Calling is very important. If suppose you will miss to call and अगर ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं किया, खाली सम फंक्शन कॉल होगा, देखो है, यस। डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। हेलो, हेलो। Yes, sir. अभी देखो है, अभी क्या किया है, ये डिस्प्ले फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, ये खाली ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। उस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने सम फंक्शन को भी कॉल किया है। हेलो, हेलो। Yes, yes, sir. तो सम फंक्शन कॉल करने का जरूरत नहीं है, देखो वो कॉल हुआ, यस। बिकॉज Yes. बिकॉज डिस्प्ले एमएसजी फंक्शन के अंदर हमने सम फंक्शन को कॉल किया है, तो हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस है वो रिड्यूस हो रहा है। हेलो, नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो रहा है, मेन फंक्शन का टास्क भी कम हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ऐसे लाखों फंक्शंस यू कैन डिफाइन योर ओन, है ना, यू कैन डिफाइन योर फंक्शंस, एन नंबर ऑफ फंक्शंस यू कैन डिफाइन।
तो फंक्शन का इंपॉर्टेंस हैव यू अंडरस्टूड? हियर वी आर स्टॉपिंग टुडे एंड बहुत ज़्यादा टाइम लिया, सॉरी टू वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोल के हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। Sir, we have very less time unfortunately, and एक लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, which is actually very कैसा देखो हम अंग्रेजी मैंने 5th स्टैंडर्ड से सीखना स्टार्ट किया है। राइट नाउ आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक इंग्लिश फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ओके, कितने साल हुए देखो है। तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इफ रियली यू वांट टू लर्न एंड what kind of dedication is required that you can understand it? Is it? Hello. Yes, Yes, sir. sir. So थोड़ा सा डेडिकेशन लगेगा सीखने के लिए, क्यूरियोसिटी भी लगेगा। once you will understand all these concepts in future any kind of language you can learn by your own hand। हमारे जो आदेश कुलकर्णी है क्या आदेश? Yes, sir. Yes, sir. तो आदेश कुलकर्णी जैसे आप सीख सकते हो खुद से है। खाली क्यूरियोसिटी चाहिए, क्यूरियोसिटी। यहाँ पे फैकल्टी का जरूरत नहीं रहेगा है। अभी देखो ये धीरे धीरे है ना, कोविड-19 से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फैकल्टी 0 हो गया यहाँ पे है। और ये प्रूव किया है, आदेश ने प्रूव किया है इसको है कि बिना फैकल्टी के भी है वी कैन लर्न द थिंग्स। तो बाद में ऐसे कुछ स्कूल्स कॉलेजेस आएंगे इन फ्यूचर है जहाँ पे बिना फैकल्टी के यू विल हैव टू लर्न बाय योर ओन है। और वो लर्निंग कब होगा? क्यूरियोसिटी होगा तो ही लर्निंग होगा। अभी आदेश कुलकर्णी जो है उनके पास क्यूरियोसिटी है, मराठी में हम कुतूहल बोलते हैं, हिंदी में क्या है वर्ड पता नहीं। जिज्ञासा, जिज्ञासा, इज इट? जिज्ञासा, यस। Yes, sir. जिज्ञासा है तो ही हम सीखते हैं। अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहेगा, कभी भी लाइफ में लर्न नहीं करोगे आप। अगर लर्न कुछ करने का है, कंपनी को भी कैसे एम्प्लॉय चाहिए देखो है, दोज हु आर फास्ट लर्नर्स। अभी टाइम नहीं है ना, कंपनी को ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं है। बहुत सारा इंजीनियर होके बाहर बाहर आ रहा है। फिर कॉलेज, इफ यू आर कंसिडरिंग कॉलेज, सो कॉलेज इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंजीनियर्स। ये भी एक कंपनी है जहां से इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर होके बाहर जा रहे हैं। यस, हेलो, हेलो। Yes, sir. और जो भी कंपनी है वो कंपनी वो प्रोडक्ट को ले रहा है, मतलब यू आर वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यू आर वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जिसका बोली लग रहा है उसको पैकेज मिल रहा है, मतलब क्या है? बोली है। आप उस पैकेज के अंदर वो आप खुद को बेच रहे हो कंपनी को। यस, हेलो। Yes, sir. आपको 7.5 लाख पैकेज मिल रहा है पर एनम, मतलब 35,000 आपको मिल रहा है पैसा वहां पे है, मतलब आपका बोली लग गया है वहां पे। यू आर वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। वो खरीद लिया वो कंपनी ने है, कॉलेज से वो खरीद लिया वो कंपनी ने। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। देयरफॉर लर्निंग इज द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत ज्यादा लर्निंग करना पड़ेगा। एम आई राइट? एज अ फैकल्टी आपको सब कुछ कहाँ तक सिखाया जा सकता है? हर एक फैकल्टी का आप ले लो है। कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। आपको वो सब्जेक्ट के अंदर अगर जिज्ञासा रहेगा तो ही आप सीखोगे, अदरवाइज दिस लर्निंग इज वेस्टेज एंड इन माय ओन वर्ड्स। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम हर्टिंग एंड यू। यस, हेलो, लेट अस टॉक, लेट अस टॉक, लेट अस टॉक। हेलो, कुछ डाउट है तो पूछो है। 25 स्टूडेंट्स रह गए हैं ना 30 में से, 5 के कुछ तो बैटरी का इश्यूज रह गया होगा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड 5 जो चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है? अभी अभी है, यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड यू हैव दैट एटीट्यूड एंड एबिलिटी एंड जो 25 स्टूडेंट्स अभी भी हमारे मीटिंग में है एंड डेफिनेटली फॉर देम है ना फ्यूचर इज ब्राइट। ओके, this is the guarantee which I am giving to these 25 students. Only what you will have to do, ये जो curiosity है वो आपको till your last breath, समझ में आ रहा है कि देखो till your last breath आपको ये curiosity जो है वो आपको रखना पड़ेगा आपके अंदर। yes, तभी जा, Yes, sir. हाँ तभी Yes, sir. एंड 101% अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो अभी ये 20 मैं बहुत बार है ना ऐसा ऑब्जर्व किया है मैंने, जो भी बच्चे रहते हैं ना क्लास के अंदर, एटलीस्ट फॉर मेरे सेशन के लिए,
ये 25 के 25 बच्चे हैं ना सिलेक्ट होते हैं। ओनली व्हाट यू हैव टू डू, ये जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, दैट यू हैव टू कंटिन्यू टिल योर लास्ट ब्रीथ। कंपनी में सिलेक्शन होने के भी बाद भी खत्म नहीं होना चाहिए लर्निंग एटीट्यूड है। टिल योर लास्ट ब्रीथ यू विल हैव टू लर्न, एंड देन ओनली you will become an valuable to this society, valuable to any kind of company. You will get package, you will earn money, you will survive in this on this earth बोलेंगे हम इसको। yes Yes, sir. तो ये थोड़ा सा चीजें है ना, इसको समझो। नाउ यू आर मैच्योर, बिकॉज इतना ज्यादा कोई लेगा नहीं आपको, ठीक है। यू आर मैच्योर, आप मैच्योर हो गए अभी है ना, 18 साल आपका कंप्लीट हुआ है ना, तो बहुत सारा मैच्योरिटी आप में आया है, ऐसा समझा जाता है। इंजीनियरिंग फील्ड कोई भी रहेगा है ना, मेडिकल फील्ड रहेगा, उसमें भी मेडिकल चीजें जो है खुद को लर्न करना पड़ेगा है ना। तो लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लर्निंग एटीट्यूड आवर वैल्यू इज जीरो। अगर फार्मर भी रहेगा, ठीक है, वो इलिटरेट रहता है, सीखा कुछ नहीं है, वो है स्कूल में नहीं गया होगा, ऐसा कुछ फार्मर हम कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके पास लर्निंग एबिलिटी रहता है, बिकॉज ऑफ विच ही इज अर्निंग इन हिज फार्म और फील्ड। यस, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. वो जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हमेशा रखता है वो फार्मर, जो बिना सीखे भी वो कुछ सीखता है एवरी डे। कभी फेल्योर भी आया उसके फार्म में, वो सीखा नहीं है, लेकिन उसने कुछ वो फेल्योर से सीखा है, वो सीखने का एटीट्यूड है, बिकॉज ऑफ विच विदाउट लर्निंग आल्सो ही इज अर्निंग मनी। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर लर्निंग अ लॉट, बट वो लर्निंग एटीट्यूड जीरो हुआ है, बिकॉज ऑफ विच आवर वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। कंपनी जो आ रहा है वो पैकेज कम दे रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्किल। यस, हेलो। Yes, sir. ये सोचो थोड़ा सा और थिंक करो। एंड डेफिनेटली फ्यूचर इज ब्राइट एंड फॉर इंजीनियर्स, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजीनियर्स जो अभी 25 है, वो छोड़ के बोल रहा हूँ, जो भी आपके क्लास में है अभी, कुछ का इश्यूज रहेगा है ना, बैटरी इश्यूज रहेगा, कुछ का बैटरी खत्म हुआ होगा, कुछ का स्टेमिना खत्म हुआ होगा ना बैठने का, तो वो छोड़ दो है ना। जो जानबूझ के सेशन को मिस किए हैं ना, उनका उनका जो रहेगा है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड अलग है बोलेंगे। अगर उनके पास कुछ माँ बाप का पैसा रहेगा, जमीन जायदाद रहेगा, 101% उनका भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा, लेकिन माँ बाप के पैसों के ऊपर। यस, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और आप जो हो यहाँ पे है ना 26 स्टूडेंट्स, you will be earning by your own, and definitely you should not suppose to be and rely on any kind of person in your in future। and आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारा चीज है। तो ये सारा थोड़ा सा अलग काइंड ऑफ सेशन हमने लिया है ना। आई एम रियली हैप्पी है ना, 26 स्टूडेंट्स दे आर अटेंडिंग माय सेशन। इतना देर होके भी पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस जो रखता है ना, उसको ही कुछ तो मिलता है, सोचो है ना लाइफ में। तो पेशेंस जो है वो इंक्रीज करो आपका है ना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में शायद संयम बुलाते हैं, मराठी में सहनशीलता। यस, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका जितना ज्यादा पेशेंस रहेगा, ये आदेश कुलकर्णी जो है ना, इनके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है। मॉर्निंग में 5 बजे उठ के कोडिंग करना, बाद में आफ्टर इवनिंग है, क्योंकि जिज्ञासा है, लर्निंग का एटीट्यूड है, खुद से सीखने का जज्बा है। ये जो चीजें है वो आगे लेके जाते हैं हमको है। इन फ्यूचर सीयर एंड आदेश कुलकर्णी कैन स्टार्ट हिज ओन फर्म, बिकॉज ही नोज एंड व्हाट काइंड ऑफ work we will have to do in the company। and Adesh Kulkarni can start his own firm like Narayan Murthy and Azim Premji, because he knows everything now, वो डेवलप कैसे करने का है। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, ये जो लर्निंग है आपको खुद काम करने का है या आपको काम करवा के लेने का है ना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ थिंग है ना। हेलो, कौन सा स्किल आप करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाया क्या जाता है कि काम कैसे करने का है।
तो वो हम सीखते हैं और हम नौकर बनेंगे आगे जाके। इसमें से आपको करना क्या है, अभी आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लोगे इन इंजीनियरिंग, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि काम कैसे किया जाता है। एंड एट द एंड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाइनल ईयर, क्या बोलेंगे देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, you will understand how to work in company, then you can start your own firm. Yes, और बाकी लोगों को हायर करके थोड़ा सा रिस्क लेके you can start your own firm. Is it? आपको पता है, Yes, क्योंकि sir. आपने काम किया है ना, इंजीनियरिंग में ही आपने काम किया है बहुत ज्यादा, तो लोगों से काम कैसे करवा के लेने का है, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव। एंड अगर कंपनी में भी गए तो आपको पता है कि हमने क्या क्या काम किया है, यू विल डायरेक्टली गो टू हायर लेवल्स। आप डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए भी चुने जा सकते हो कॉलेज थ्रू, ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने। ओके, Okay, sir. हाँ, आपके पास स्किल रहेगा ना, कम्युनिकेशन स्किल इज द पावर, एंड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू टॉक अ लॉट एंड यू विल हैव टू स्पीक। ये जो टॉकेटिव नेचर है ना, उसके लिए ही हमने वो जो कीनोट स्टूडेंट जो ग्रुप बनाया है, एक्चुअली स्टूडेंट्स आर शाई है। हमारा जो रूरल बैकग्राउंड से बहुत सारा बच्चा आता है, आप सोचो है, एंड दे आर शाई है। शाई मतलब क्या बोलते हैं देखो, है शर्माते हैं ज्यादा। यस, हेलो। तो आपके पास Yes, अगर sir. कम्युनिकेशन रहेगा तो डेफिनेटली योर फ्यूचर इज ब्राइट। तो thank you very much for attending this session. I hope lot of learning happened with this session. I'm really happy. And 25 students जो है बढ़ गया है 26। I'm really happy and once again एक कोई तो बड़ा है, तो ये 26 स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट है। लेट अस स्टॉप हियर। ओके, हेलो, Okay, sir. थैंक यू, Okay. थैंक यू वेरी मच, बाय।